Hello, my dear students. A very warm welcome once again to the class of chemistry, where we are talking about a very beautiful chapter, that's equilibrium. And I am your host and teacher for the chapter. My name is Manjot Singh. Let's go ahead and talk about today's class. Now, we were talking about, very interestingly, something called as ionic equilibrium, right? And we told you that in ionic equilibrium, the equilibrium is attained between unionized form and ionized form of a particular species. And from there, we took out a very important equilibrium constant, which was known as ionization constant. And from there, we told you that these can be divided into Ka and Kb. Now try and understand, because today's lecture is related to this. Ka was given for a particular substance which is known as acid, and Kb was given for a particular substance which is known as base, right? So these are for acids, these are for bases. But when we talked about Bronsted acids and bases, we talked about a very special substance known as amphoteric species, right, which can act as both acids as well as base. And in that too, I told you that water is something which is very important amphoteric species, and we also know that water is something which is known as a universal solvent, right? We know this, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं. Why? Because it can dissolve maximum of the species. Maximum, I'm not saying all, but maximum of the species. I have given you the reason for this is the dielectric constant of water, is the dielectric constant of the water, right, which is approximately 80, which decreases the force of attraction between the atoms of the molecule, and hence they dissociate into water. So this basically is a very important property, and this cannot be neglected. So the way we studied dissociation constant of acid, dissociation constant of base, there is very important thing known as ionization or dissociation constant of water particularly, which is known as Kw, represented as Kw. Now why is it important? We will come to know exactly in today's lecture. Now try and understand. Let's begin with today's lecture, that is nothing but ionization constant of water, right? So I told you Ka, Kb, right? Ka, Kb, and now we are going to study Kw, the most important. And from here we are going to relate these two also, Ka and Kb. For a particular acid or a base, we can relate using Kw. The relation between Ka and Kb can be derived, right? We will talk about that later stages, but let's first talk about the ionization constant of water, which is represented as Kw. Now, interesting thing to know about water. Water in its pure form, when you have kept water in a glass, there will be millions and millions of molecules, right? So one molecule of water reacts with another molecule of water, in which one molecule donates H plus and other molecule accepts H plus. So one molecule start acting as acid, one molecule start acting as base, and we get something called as H3O plus. The species, the molecule which is taking H plus will form H3O plus aqueous and OH minus aqueous. क्या बात कर रहे हो सर? Really,
when we are having a glass of water in our hand, is it in this form? Yes, it is in this form. मतलब उसके अंदर H3O प्लस OH माइनस एंड H2O के बीच में एक इक्विलिब्रियम आया होता है. जब आप उसको रखते हो तो इन आयंस ऑफ वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में देयर इज एन इक्विलिब्रियम. तो क्या हम यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख सकते हैं? दैट इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय concentration of H2O का square. We can write this, right? And since this is in aqueous, this is in aqueous, this is in liquid form, we know that if this is in liquid form, that means this might have been in excess in the solution. And that was practically proven also, experimentally proven also, that the ions of water are very, very less at room temperature. when we are talking about room temperature मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे जब हम बात करते हैं तो H3O प्लस और OH माइनस का जो आयंस का कंसंट्रेशन है वाटर में, दैट्स वेरी वेरी लेस. मतलब अनआयोनाइज्ड वाटर जो है दैट इज इन वेरी मच एक्सेस. सो दिस वाज अ कांस्टेंट ओवर हियर, राइट? दिस वाज अ कांस्टेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑल्सो बिकम्स कांस्टेंट, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि एक्वस के रिस्पेक्ट में लिक्विड यूनिटी हो जाता है. सो KI इंटू H2O का स्क्वायर कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट बन जाएगा एंड दैट इज नथिंग बट KW, एंड KW इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ H3O प्लस इंटू प्रोडक्ट ऑफ OH माइनस. और इसी KW को बोला गया नथिंग बट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या फिर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, बट ये चीज समझना बहुत जरूरी है दैट पानी का आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है उसको KW से रिप्रेजेंट किया जाता है. Why this is important? I am coming to that point. So please take your pens, keep your notebooks beside you while you are listening to this lecture. I'm going at a very slow pace. You should be noting down the things while you are watching the lecture. Take it as a live lecture and try to note down the things, right? Now, I'll just clear the screen up and I will write down that we have proven KW is equals to concentration of H3O plus into concentration of OH minus. बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने जा रही है. When we talk about temperature of 298 Kelvin, that is nothing but 25 degrees Celsius, which is a generally room temperature. तो क्या फाइंड आउट हुआ? तो ये फाइंड आउट हुआ कि ये KW का वैल्यू जो है, ये KW का वैल्यू जो है दैट इज नथिंग बट 1.008 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. KW की वैल्यू क्या निकली? 1.008 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14. यूनिट लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर. दिख रहा है ना? मोल पर लीटर होता है H3O प्लस का कंसेंट्रेशन, मोल पर लीटर होता है OH माइनस का कंसेंट्रेशन. मल्टीप्लाई करोगे तो मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर ऐसे आ जाएगा. और इस वैल्यू को कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए वी कैन राइट डाउन एज 10 टू द पावर माइनस 14 ओनली. दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, राइट? सो KW का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिला 10 टू द पावर माइनस 14 एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, राइट? बट at 25 डिग्री सेल्सियस. लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, लेट से 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये KW का वैल्यू जो है वो 10 टू द पावर माइनस 14 से इंक्रीज हो गया, डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हो गया. सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे KW का वैल्यू इंक्रीज हो गया 10 टू द पावर माइनस 12 लेट से. सेम वेज KW जब हम 50 डिग्री सेल्सियस पे गए तो वैल्यू हो गया 10 टू द पावर माइनस 11 लाइक दैट.
इंक्रीज होना शुरू हो गया. 10 to the power minus 14 इज अ स्मॉलर वैल्यू, दिस इज अ बिगर वैल्यू, दिस इज अ बिगर वैल्यू, राइट. और उसका लॉजिक यहां से हमें मिला, भाई H2O लिक्विड जब डिसोसिएट होके H3O प्लस और OH माइनस दे रहा है, राइट. तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है दैट इज नथिंग बट प्लस 53.6 किलो जूल पर मोल, प्लस 53.6 किलो जूल पर मोल, राइट. 53.6 नो सॉरी 56.3, दिस इज 56.3 किलो जूल पर मोल, राइट. अब दिख रहा है डेल्टा एच में पॉजिटिव है, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है. और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कौन सा डायरेक्शन फेवर होता है, एंडोथर्मिक. ले शैटलर्स प्रिंसिपल. तो भाई साहब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर होगा और आयंस जो हैं वो ज्यादा बनेंगे. आयंस ज्यादा बनेंगे तो KW का वैल्यू देखो इंक्रीज होगा ना. सिंपल सा लॉजिक है. मैंने आपको बोला है केमिकल इक्विलिब्रियम अगर क्लियर है, ले शैटलर्स अगर क्लियर है, तो ये सब चीजें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि KW का वैल्यू जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. KW का वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट. सो अभी के लिए आप इतना लिखो कि भाई एट 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस द KW वैल्यू इज 10 to the minus 14 बिकॉज हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही होंगे. अब डू वी नो समथिंग दैट वाटर इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल और न्यूट्रल सब्सटेंस, बेसिकली न्यूट्रल सब्सटेंस ऐसा बोल सकते हैं ना. इट्स न्यूट्रल, राइट. हमको पता है उसका pH 7 होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट. pH 7 होता है. तो अगर ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो मतलब इसके अंदर जो H3O प्लस का कंसंट्रेशन है वो एग्जैक्टली इक्वल होगा OH माइनस के. यही तो निशानी है किसकी, न्यूट्रल स्पीशीज की, राइट. अगर स्पीशी, अगर सब्सटेंस, अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो मतलब उसके अंदर H3O प्लस का कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH माइनस, तो वो स्पीशी कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है. और अगर कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज लेसर देन OH माइनस, तो उस केस में वो स्पीशी कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है, होता है ना. सो इफ इन वाटर यू आर एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड then this case will come. If you are adding small amount of base तो वो OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ा देगा तो H3O प्लस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां बताने जा रहा हूं उसका ध्यान दीजिएगा. इफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस एंड OH माइनस is same at 25 degrees Celsius, we are talking about in water, in pure water, if H3O plus is equals to OH minus, then can I write down KW is equals to concentration of H3O plus का square, right. I can write down this, लिख सकता हूं कि नहीं, H3O plus का square, because ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर इसको या इसको किसी को भी रिप्लेस कर दो with the other species. So H3O plus का square which is equals to 10 to the power minus, इसको नीचे लिख देते हैं कि KW का वैल्यू हमने निकाला यहाँ पर 10 to the power minus 14 which is equals to 10 to the power minus 14. So I can write down that at 25 degrees Celsius concentration of H3O plus is nothing but square root of 10 to the power minus 14. एंड जब वो -14 को आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर आएगा 10 to the power minus 7. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली लिख लो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि भाई जब हम 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हैं, व्हेन वी
talk at 25 degrees Celsius, then the value of Kw is 10 to the power minus 14, and the concentration of H3O plus is equals to concentration of OH minus, which is equals to 10 to the power minus 7. प्रूव किया हमने, राइट, विच इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 7. बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिला है. ये चीज आपको 100% वैल्यू याद कर लेनी है Kw की एट 25 डिग्री सेल्सियस. बट अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ध्यान से देखिएगा, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो होगा क्या? अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो Kw की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. मतलब Kw की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन अभी भी वाटर है ना, न्यूट्रल है, तो H3O प्लस और OH माइनस का कंसेंट्रेशन तो सेम ही रहेगा. तो ये 10 टू द पावर 7 की जगह पे, -7 की जगह पे कुछ वैल्यू इंक्रीज होके आपको दिखेगी, राइट. ये यहां पर, यहाँ इफ दिस बिकम्स 10 टू द पावर -12, तो यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी 10 टू द पावर -6 एट इंक्रीज्ड टेम्परेचर, एट इंक्रीज्ड टेम्परेचर. करेक्ट, सिंपल, इजी. All right, let's go back to our slides and let's clear the screen and let's give you the information over here. Kw is equals to 10 to the power minus 14 at 25 degrees Celsius. Concentration of H3O plus into concentration is equals to concentration of OH minus, which is equals to 10 to the power minus 7. And Kw का equation लिख लेना, that is nothing but concentration of H3O plus into concentration of OH minus. अब इस पूरे पार्ट का इंपॉर्टेंस, इसी में ही मजा आने वाला है. सो प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली कि सर हमने ये Kw इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया, पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर क्यों अटेंड कर रहे हैं हम. द रीजन ओवर हियर इज कि भाई साहब, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, Kw का वैल्यू 10 टू द पावर -14 ही रहेगा. यस, Kw is equals to concentration of H3O plus into concentration of OH minus. Try and understand. इसका वैल्यू 10 टू द पावर -14 ही रहेगा. इसका वैल्यू 10 टू द पावर -14 ही रहेगा. भले आपने इस पानी के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ एसिड डाल दिया. अब सपोज करो वो एसिड जो आपने डाला, वो डाला 10 टू द पावर -1 HCl. ठीक है, 10 टू द पावर -1 मोलर डाला आपने, 0.1 मोलर डाला. ठीक है, तो मतलब वो पानी के अंदर जाके क्या किया होगा, वो H3O प्लस का कंसंट्रेशन जो है उसने बढ़ा दिया होगा कंपेयर टू OH माइनस. मतलब अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे ये 10 टू द पावर -7 है और ये भी 10 टू द पावर -7 है, तभी तो आंसर 10 टू द पावर -14 आ रहा है. अब H3O प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ के हो गया 10 टू द पावर -6. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. अगर ये हो गया 10 टू द पावर -6, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा टू 10 टू द पावर -8 सच दैट दिस वैल्यू रिमेन्स 10 टू द पावर -14. दिस वैल्यू रिमेन्स 10 टू द पावर -14. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. मतलब क्या? मतलब ये कि साइंटिस्ट लोगों ने ये ढूंढा कि भाई आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है. जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक आपका वो प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा. और अगर वो प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो मतलब अगर एसिड डालने पे H प्लस बढ़ रहा है तो उसके सामने OH माइनस घट जाएगा. सिमिलरली अगर मैंने इसी वाटर के अंदर एसिड की जगह पे बेस डाला, अगेन 0.1 मोलर डाला, तो मेरा H3O प्लस का कंसंट्रेशन जो है वो घट जाएगा कंपेयर टू OH माइनस. तो सपोज करो ये 10 टू द पावर -6 हुआ, ये बढ़ गया ना, तो ये 10 टू द पावर -8 हो जाएगा सच दैट द वैल्यू रिमेन्स
10 to the power minus 14। यही है इस Kw की इंपॉर्टेंस, यही है इस Kw की इंपॉर्टेंस। और ये जो Kw है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बहुत ही सिंपल, राइट। तो अगर अगर आपको कोई बोल दे, अगर आपको कोई बोल दे कि भाई एट 25 डिग्री सेल्सियस Kw का वैल्यू, या एट सर्टेन टेम्परेचर, ऐसा कुछ बोल दे, एट सर्टेन टेम्परेचर Kw's value is 10 to the power minus 13, let's say, and concentration of H plus ions is 10 to the power minus let's say 10 to the power minus 4। बोलता है फाइंड आउट व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो आप डायरेक्टली ये इक्वेशन लगा सकते हो जो ऊपर लिखा हमने, Kw का वैल्यू दिया है। सिंस क्यों लगा सकते हो, बिकॉज Kw का वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट तो है ही नहीं। बट वो हमें ये हेल्प कर रहा है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इतना है तो उसके सामने OH माइनस कितना होगा। तो यहां पर सिंपली Kw इज इक्वल्स टू concentration of H3O plus, H plus और H3O plus is one and the same thing, into concentration of OH minus, है ना। Kw का वैल्यू हमने क्या निकाला, Kw का वैल्यू हमने निकाला यहाँ पर Kw is equals to concentration of H3O plus into concentration of OH minus। ये है तो आप ये निकाल सकते हो as concentration of OH minus is Kw by concentration of H3O plus। आंसर आ जाएगा 10 to the power minus 13 divided by 10 to the power minus 4। आंसर आ गया 10 to the power minus 13 plus 4। तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा -9। देख लो, इसको जब आप यहाँ डालोगे तो 10 to the power minus 4 ये था, वैल्यू 10 to the power minus 13 ही रहेगी। So very powerful equations, these two, not two, I would say only this one, जिसमें से अगर आपको Kw पता है और इन दोनों में से किसी एक कंसंट्रेशन के बारे में पता है तो दूसरा कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो सिंपली बाय डिवाइडिंग विद Kw। सिंपल है, इजी। सो दिस इक्वेशन ओवर हियर becomes very important, and that's the importance of this equation, that it helps you calculate the concentration of H plus or OH minus if one of the concentration is known, correct। बट कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, अभी तो जस्ट इनिशियल स्पार्क हुआ है, कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहानी में आगे अब और भी बिगिनिंग हो चुका है, तो और भी रिसर्च हुआ होगा, और रिसर्च हुआ तो पता चला कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को एक बेटर वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यू कैन रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन, द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दैट इज H प्लस आयंस, you can represent the power of hydrogen ions in a much better way, and that better way was found out by very interesting scientist, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। Till then, take care of yourself. Bye bye.